Hello to all my dear students. Today we are going to learn chapter number 8, Shapes and Space. I welcome all the students of class 4th. Okay. So here we have learning objectives. So after studying this chapter, you will be able to. What are the things that we are going to learn here? Okay. Get an idea of maps and recognize spaces on a map. Understand the basic concepts of geometry like point, line, segment and ray. Identify the open shapes, closed shapes and types of polygons. Recognize a circle, name its parts and draw it using a pencil and a compass. Recognize different view of a solid shape. Draw nets of cubes and cuboids. So students, these are the learning objectives of this chapter. So in this chapter, we will learn about all these things. So students, maybe इस chapter में बहुत सारे learning objectives included नहीं हैं. This is because they could not be made completely in this, and I have made another video for all that things which are left out. Okay, so example for maps, I have made another video. Please go through that one. Okay, so in this chapter, shapes and space, the correct concept of shapes and space is can be understood by the second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, last 5 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और उनके टॉपिक्स जो हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो आइए वन बाय वन इनको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री हमने लास्ट टाइम भी क्लास 3rd में इसको स्टडी किया था. ठीक है, सो जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टडी. सो पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉइंट. स्टूडेंट्स, पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट ए यहाँ है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री. दिस इज द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री. अ डॉट represents a point. A single dot, it represents a point. A point has no length, उसमें कोई लेंथ नहीं होती. Width और thickness. Okay, the simple dot is there, it has only position, सिर्फ उसकी पे पोजीशन होती है. So how you will draw a point? Take a sharpened pencil and mark a dot on a piece of paper. शार्पन पेंसिल आप लीजिए और सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे एक डॉट बना दीजिए और उसको ए नाम दे दीजिए. सो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है ये कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होता है. हम इसको कभी भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखते हैं. वी मेंशन इट इन कैपिटल लेटर्स. सो वी से दैट ए इज़ अ पॉइंट. ओके, सो अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर of the English alphabet. ठीक है, next is line. Okay, so line we have already been studying from LKG. Make a straight line, sleeping line, slanting line. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्री के टर्म में ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड ऑब्लिक और स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, हमें ये याद रखना है. सो बेसिकली जो है लाइन की डेफिनेशन क्या है? अ लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शंस. पॉइंट का कलेक्शन होता है ये अलॉन्ग विथ अ स्ट्रेट पाथ और ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है. ठीक है, आप देख सकते हैं ए एंड बी और दोनों तरफ इसमें एरो लिखा है, इसमें एरो बना हुआ है. ठीक है, सो बोथ द साइड्स, ये इसकी एक फिक्स लेंथ नहीं है,
it can extend from both the sides. So we represent a line by the symbol double arrow. Okay, two-sided arrow, two direction arrow. So you can see the symbol here. ये symbol है यहाँ पे. For example, AB like this, CD and XY. इस तरह से स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, तो AB लाइन AB अगर हम कहेंगे तो लाइन AB वेरी नाइसली वी विल मेक लाइक दिस, और मे बी CD इज देयर. तो डिफरेंट तरीके से लाइन है, लेकिन बट इट इज़ अ लाइन. मेन थिंग इज इट इज़ अ लाइन. ठीक है, सो these represent lines AB, CD and XY respectively. The arrowheads on both the ends, okay, it tells us that a line can be extended endlessly in both directions. दोनों जो arrowheads हैं both directions में जो end करती हैं, ये हमें बताती हैं कि ये दोनों endless है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकता. And both the directions से it can extend. ठीक है, so horizontal line sleeping line, vertical line is straight line, and oblique is the slanting line. Okay, next ray. Students, ray क्या होता है? मैंने एग्जाम्पल में लिखा यहाँ पे सन रेज एंड लाइट रेज. स्टूडेंट्स सोच लीजिए आप कि सन है यहाँ पर और उसकी रेज आपके तक आ रही हैं. तो सन जो है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, इट्स लाइट इज कमिंग, सो एक्चुअली द प्लेस फ्रॉम वेयर द सन इज गिविंग इट्स लाइट, दैट प्लेस इज गिविंग द लाइट. तो उसके पास लाइट नहीं आ रही है, वो लाइट दे रहा है. ठीक है, तो सन रेज से मतलब हम ये समझते हैं वाई वी हैव स्टडीड लाइट रेज एंड सन रेज. इट इज़ बिकॉज it has one end. Very easily, a ray is a part of a line whose one end originates from a point and the other end extend endlessly in one direction. एक तरफ से तो वो बंद है और एक तरफ से वो endless है. ठीक है, in one direction. So एक ही direction से ये extend कर सकता है. For example, light. जब हम टॉर्च की लाइट जलाते हैं तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने नहीं आता तब तक लाइट ट्रैवल करता है. तो लाइट भी क्या है? लाइट एक रे है, बिकॉज वो एक तरफ से तो स्टार्ट हो रहा है बट उसकी लाइट अनएंडिंग है. ओके, इट एंडलेसली इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इट मूव्स इन अ वेरी स्ट्रेट लाइन लाइक अ रे. सो दैट्स व्हाई वी से सन रेज एंड लाइट रेज. सो हेयर AB इज अ रे. Ray AB and ray BA are not the same rays. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ray AB and BA are not the same rays. ये दोनों सेम रेज नहीं है. ऐसा क्यों? सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे A जो है इसके पास एरो हेड है और जो फर्स्ट वाला है उसमें B के तरफ एरो हेड है. That means we will write it like this. So these are two different rays and they can be extended in two different directions. ठीक है, एक का लेफ्ट, एक का राइट साइड से है और एक का लेफ्ट साइड से. तो दोनों अलग हैं बिकॉज उनकी डायरेक्शंस मूवमेंट भी अलग हैं. ओके, सो इन अ वे दैट दे आर डिफरेंट रेज irrespective of the same alphabet, but the position of arrow, they are different rays. So they are represented as AB and BA. So ray, it is clear to you, I hope. Okay, so next is line segment. So a straight line that has a fixed length and has two endpoints is called a line segment. So students, जिसमें एक फिक्स लेंथ होती है दोनों तरफ से, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन. वो लाइन का ही पार्ट होता है. ठीक है,
सो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट और लाइन अलग अलग है. लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट है. ओके, सो बाय नेमिंग इट्स टू एंड पॉइंट्स वी कैन नेम अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, जैसे एक लाइन में बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स बीच में हो सकते हैं. आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स आपको. ठीक है, ओके. So we can name a line segment like this. Look at the figure shown. So AXY is a line segment, क्योंकि ये पूरे पूरे एंड पॉइंट्स के साथ दिया हुआ है. इसमें कोई एरो नहीं है. जिसमें एरो स्टूडेंट्स नहीं होता है दोनों तरफ, वही एक लाइन सेगमेंट होगा. So it has a fixed position, fixed length. Okay, look at the figure shown. XY is a line segment. So x and y are its endpoints. So it is represented as xy with two end dots. Okay. Next is plane. What is plane? A plane is a flat surface that extends indefinitely in all directions. अब सोचिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है और एक प्लेन है. So a plane, it extends endlessly in all directions. Means all directions mean north, east, west, south, left, right, front, back, हर तरफ. ठीक है. So the surface of a book, a tabletop, a sheet of paper are all physical examples of a plane. So these are physical examples. Coming forward to open and closed figures. ठीक है. Now let's first study the first line for the closed figures. So figures that start and end at the same point are called closed figures. जो फिगर्स एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पे आके एंड करते हैं, वो फिगर्स क्लोज फिगर्स होते हैं. Okay, you can see we have here 3 figures. So these 3 figures are actually close figures. Close का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, it means close means बंद है. तो इसका एक another symbol होता है कि ये close है. Okay, so that means close figure. Okay, next students, a closed curve which does not cross itself is called a simple closed figure. एक closed कर्व है उसमें जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता, वो एक सिंपल क्लोज फिगर है. इन द गिवन फिगर्स A and B are simple closed figure, whereas figure C is not a simple closed figure. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पिक्चर नंबर A, B एंड C, इसमें A एंड B अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है और C क्रॉस कर रहा है. ठीक है, ये पॉइंट और फिगर जो है आपस में क्रॉस कर रहे हैं. भले ही ये क्लोज है लेकिन फिर भी ये क्रॉस कर रहा है. तो इसमें एक कैटेगरी बस आ गई है एक, कि एक सिंपल क्लोज फिगर है और एक सिर्फ क्लोज फिगर है. तो इस पर हम कैटेगरी हमने समझ ली. A एंड B आर सिंपल क्लोज फिगर और C इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फिगर्स दैट डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड ओपन फिगर्स. वो फिगर्स जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट उनका डिफरेंट होता है, अलग अलग वो एंड हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम ओपन फिगर्स कहते हैं. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स A, B and C. These are open figures. So students, this was about basic geometric concepts. So rest of the things you'll see in another video. Okay. So basic concepts of geometry in this video we have done.
Check out for next one.